নমস্কার যোগেন্দ্রজি। যোগেন্দ্রজির পরিচয় দেওয়াটা কারো কাছে এটা বাতুলতা। যোগেন্দ্রজি সবচেয়ে আমার কাছে যেটা সবচেয়ে বড় মনে হয় যোগেন্দ্রজির কন্ট্রিবিউশন এই সমাজের প্রতি, সেটা হচ্ছে যে তিনি যখন আপ থেকে বেরিয়ে, আমি আর পুরনো ইতিহাসে যাচ্ছি না, আপ থেকে যিনি তিনি বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলেন, তারপরে উনি যখন ফিল করলেন যে ভারতবর্ষে কৃষক সমাজ, তাদেরকে যদি জাগানো না যায়, তাদের সমস্যাগুলোকে যদি আমরা সামনে আনতে না পারি, তাহলে বোধহয় আমাদের দেশের সমস্যাগুলো সমাধান করা কঠিন। তো সেই ভেবেই উনি তারপর থেকেই ওই সময় দিয়ে খরাপ্রবণ যে সেন্ট্রাল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি মানে পদযাত্রা করেন এবং তাই সেইটা নিয়ে নানা রকম মানে সমাধানের জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ নেন এবং পরবর্তীকালে উনি ফিল করেন যে কৃষক সমাজকে একত্র করার দরকার এবং সেইটা প্রথম দিকে মহারাষ্ট্রের একজন কৃষক নেতা সাড়া দিয়েছিলেন, তারপরে ধীরে ধীরে 30, 40, 50 এরকম। কিন্তু ওই মানসোরের ঘটনার পর এটা একটা মানে মানে খুব দ্রুত এগোতে লাগলো এবং তারপর দেখা গেল 100, 150, 200 এবং ফাইনালি যখন নাকি আমরা এই যে সংযুক্ত কৃষক মোর্চা যখন নাকি এলো, যেই ঐতিহাসিক লড়াইটা হলো, সেই লড়াইটার সময় প্রায় 300, 350 কৃষক মানে সংগঠন তারা এখানে জড়ো হয়েছিল এবং পাঞ্জাবের কৃষকদের যে ভূমিকা সেটা তো আপনি জানেন। কিন্তু আমার যেটা বলার সেটা হচ্ছে এই যে মহাযজ্ঞ, এই মহাযজ্ঞের অন্যতম প্রধান পুরোহিত যোগেন্দ্রজি। এটা আমার কাছে একটা বিরাট বড় ওনার অবদান বলে আমি মনে করি। কিন্তু এটা এটা উনি এত মানে এই বিষয়টাকে চেপে রাখেন, কাউকে কিছু বলেন না, কিন্তু আমি আজকে সুযোগ পেয়েছি বলে এটাকে একটু আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। যাই হোক, যোগেন্দ্রজির ইতিমধ্যে এই মানে বিভিন্ন বিহার আন্দোলন, এসআইআর আর বিহারের ভোট, এসআইআর ইত্যাদি নিয়ে ওনার ভূমিকা আপনারা সবাই জানেন, সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছেন। আমার আজকে যোগেন্দ্রজির কাছে যে প্রশ্নটা, সেটা হচ্ছে যে এই যে ঘটনাটা, এই একের পর এক মোদি যে জিতে যাচ্ছে 240-এ, ও যে আটকে গেছিল, এটা বোধহয় আশা করেনি। তারপর থেকেই ওরা যে বুঝলো যে আমাদের নর্মাল যে প্রসেসে ভোট করছি তাতে হবে না, আমাদের অন্য কিছু করতে হবে। এবং সেই অন্য কিছুর ফল হচ্ছে হরিয়ানার হরিয়ানার ভোটের ফলকে উল্টে দেওয়া। দিল্লিতে ওরা একটু এগিয়েই ছিল, তা হোক, দিল্লিতেও ওরা খুব ইজিলি জিতলো। আর মহারাষ্ট্রেও তো অভাবনীয়ভাবে জিতলো। সুতরাং এবং তারপরে এসেই বিহার। তো সমস্ত বিষয়টা নিয়ে আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে এটার পিছনে সবচেয়ে বড় অভাব যে বিরোধীদের ঐক্যের অভাব, এবং সেটা করার জন্য যে ইন্ডিয়া জোটটা তৈরি হচ্ছিল, যেটা মহারাষ্ট্রে গিয়ে হঠাৎ করে থমকে গেল এবং বলতে গেলে প্রায় কমায় চলে গেল। আমরা ইন্ডিয়া জোটের নামটা শুনি কিন্তু তার ব্যবহারিক কোনো মানে দেখি না, আমরা কার্যকারিতা দেখি না। তো আমার যেটা মনে হয় এই ব্যাপারে, তো এই যে এটাকে মানে ইন্ডিয়া জোটটাকে পিছন থেকে টেনে ধরা বা পরিপূর্ণতার দিকে না যেতে দেওয়া, এটার জন্য তো কংগ্রেস দল এবং তার নেতা রাহুল গান্ধীর একটা বড় ভূমিকা, বা এটা এটা দুর্ভাগ্যের হলেও এটাকে আমাদের বলতেই হবে। তো তারা কি বোঝেন না যে ইন্ডিয়া জোট ছাড়া বা সার্বিক বিরোধী ঐক্য ছাড়া মোদির মতো বা মোদি বা তার যে সাংগঠনিক যে ব্যবস্থাটা আছে, একে সরানো অসম্ভব। এবং এবং আপনি হয়তো অঙ্কের হিসেবে বলতে পারেন না এরা এগিয়ে আছে, ঠিক আছে, হ্যান কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে, মানে এটা আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি, যখন নাকি শাসক দলের বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধী পক্ষ একটা জায়গায় আসে, যেটা জয়প্রকাশের সময় আমরা দেখেছিলাম যে একদম সমস্ত হিসেব গন্ডগোল হয়ে যায়, সমস্ত পাবলিক একদম নেমে পড়ে। এখনো পাবলিক ভাবছে কেন যে না মোদি তো ভালোই, মোদি 10,000 টাকা ভালো। তার কারণ হচ্ছে বিকল্প নেই। প্রচুর লোক মোদির বিরুদ্ধে, কিন্তু বিকল্প পাচ্ছে না, ভরসা করতে পারছে না বিরোধী দলের উপর। কিন্তু আমি মনে করি যদি ইন্ডিয়া জোটটাকে এখনো সময় আছে, পুনর্গঠিত করা যায় এবং তার যে সাংগঠনিক ধাঁচাটাকে শক্তভাবে তৈরি করা যায়, এবং এবং লাগাতার যদি আমরা এই মানে এখন যেমন নাকি ধরুন এই যে একে রেখে, জ্ঞানেশ কুমারকে রেখে কোনো ভোট মানে স্বাভাবিক ভোট সম্ভব নয়। সুতরাং একে অপসারণের দাবিতে আমাদের যদি লাগাতার যদি একটা অহিংস আন্দোলন আমরা আস্তে 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 সমস্ত দেশব্যাপী এটা করতে পারি, আমার মনে হয় তাহলে কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টাবে। তো এই বিষয়ে এই যে কংগ্রেসের যে ভূমিকা, এটার জন্য এক এক সময় আমার মনে হয় যে রাহুল গান্ধীর যে উপদেষ্টা মন্ডলী আছে তার পিছনে কি মোদির লোকজনের বা তার কোনো দুষ্প্রভাব কি কাজ করছে, এটা এইটা আমার কাছে একটা বড় প্রশ্ন। থ্যাংকস দাদা। অনেক প্রশ্ন আছে। আপনি জানেন আমি বাংলা বুঝতে পারি, ভালো করে বলতে পারি না, না। আমি হিন্দি। हिंदी में কথা বলবো। আপনার হিন্দি আপনি পরিষ্কার। अनेक प्रश्न आपने पूछे हैं और मैं मोटे तौर पे उसका एक जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में
जो धक्का लगा मोदी को, बीजेपी को, आरएसएस का जो डिजाइन था उसको जो धक्का लगा, उसको पिछले 1 साल में उन्होंने बराबर कर दिया है। इसलिए नहीं कि पब्लिक का मूड बदल गया है, इसलिए नहीं कि जो जमीन पे हालात हैं वो बदल गए हैं, नहीं वो नहीं बदले। जनता का दुख नहीं बदला है, जनता का एक जो ये सेंस है कि नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं वो नहीं बदला है, लेकिन परसेप्शन जो है, जो मीडिया में बना है और जो पॉलिटिकल रिजल्ट्स हैं, इलेक्टोरल आउटकम्स हैं, उसमें पलट गया है। आपने सही कहा, दिल्ली में तो एक तरह बीजेपी पहले जीती हुई थी लोकसभा में, उसी को उन्होंने विधानसभा में कन्वर्ट कर लिया जो पिछली बार नहीं कर पाए थे। हरियाणा में बीजेपी थोड़ी सी पीछे थी और थोड़ी सी आगे हो गई, जो बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि हरियाणा में जमीन पे हर कोई व्यक्ति कह रहा था कि बीजेपी तो हारेगी। आपने सही बताया, महाराष्ट्र सबसे बड़ा धक्का था विपक्ष के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बिल्कुल एक तरफा था और विधानसभा चुनाव में इधर पलटा ही नहीं, पलट के इतना दूर चला गया। तो वो जो महाराष्ट्र का धक्का था वो बहुत बड़ा था। बिहार को हालांकि मैं उतना बड़ा नहीं मानता, क्योंकि याद रखिए बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए 8% आगे था। हम लोग याद रखते हैं कि 2020 में बहुत क्लोज मुकाबला था, पर एक्चुअली क्लोज नहीं था, क्योंकि तब ये पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी, वो बाहर थी और वो नीतीश कुमार को हराने के लिए काम कर रही थी। जब वो वापस आ गए तो एनडीए थोड़ा बड़ा गठबंधन है, इसमें कोई संदेह नहीं, और एनडीए एक बड़ा सामाजिक गठबंधन भी है, जातीय गठबंधन जो बिहार में बहुत महत्वपूर्ण है। जातीय गठबंधन के हिसाब से भी महागठबंधन 40% वोट का तालाब है, उसमें से अपने वोट निकालता है, और एनडीए 50-52% का जो है, तो 40 वर्सेस 50 का स्केल है ना। तो वो अगर कम भी निकालेंगे तो उनके पास ज्यादा होगा। इन्हें चुनाव जीतने के लिए पूरा निकालना पड़ेगा, ये फर्क है। तो ये इसलिए बिहार को मैं उस लिहाज से इतना बड़ा धक्का नहीं मानता, कम से कम मेरे लिए, जो ग्राउंड पे था, देख रहा था, जो भी लोग देख रहे थे, उनका ये अपेक्षा यही था कि एनडीए आगे है। हाँ, जितना मार्जिन आया है विक्ट्री का, उसमें देख के संदेह होता है, लगता है कि नहीं कुछ बीच में कुछ स्टीरॉयड भी डाला है क्या, कुछ बीच में दवा भी दी है क्या, ये सब चक्कर है। लेकिन मोटी बात आपकी सही है कि जो लोकसभा चुनाव में इस देश में लोकतंत्र की चाह रखने वाले लोगों को जो एक खिड़की खुली हुई लगती थी, वो खिड़की फिर पलट के अब एक रोशनदान बन गई है, छोटी सी। ये बात सही है। आपने इसके लिए विपक्ष की एकता को सबसे बड़ा कारण बताया। मैं मानता हूं विपक्ष की एकता अनिवार्य है, मगर वो पर्याप्त नहीं है, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। देखिए, महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की प्रॉब्लम नहीं थी, पहले उनका थोड़ा खींचतान था, लेकिन सीट एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं थी। हरियाणा में विपक्षी एकता का सवाल बड़ा था नहीं, बाहर लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी नहीं हुई, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है हरियाणा में। बिहार में भी विपक्षी एकता नहीं है, इसका प्रचार काफी हुआ, वास्तव में डैमेज सिर्फ 4 या 5 सीट पे है। तो एकता जरूरी है, जरूरी सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो जमीन पे उससे वो होता है, बल्कि इसलिए कि एक परसेप्शन बनता है। बिहार में विपक्षी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ फाइनली 6-7 सीट पे चुनाव, 12 सीट थे, लेकिन फाइनली 6-7 सीट पे सीरियस कॉन्टेस्ट था। लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन बना वो ये कि तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कैसे सरकार बनाएंगे, तो एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते, सरकार कैसे चलाएंगे, दैट इज मोर डैमेजिंग देन द एक्चुअल डैमेज। दूसरा, मुझे लगता है एकता से ज्यादा बड़ी चीज, विपक्ष के पास एक कोई वैकल्पिक प्रस्ताव नहीं देश के सामने, बिहार के सामने, और उनके पास कोई एक रणनीति नहीं। ये दो ज्यादा बड़े सवाल हैं। और उसके पास एक विचारधारा नहीं। साधारण चीज से शुरू करें, रणनीति। तो आप ये समझ लीजिए, जैसे आपको पता नहीं क्रिकेट में इंटरेस्ट है या नहीं, आज से 15-20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी और इंडिया की टीम होती थी। इंडिया की टीम के पास बैट्समैन बहुत अच्छे थे, सचिन तेंदुलकर भी था, राहुल द्रविड़ भी था, हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन हमारे प्लेयर इंडिविजुअल प्लेयर, और ऑस्ट्रेलिया टीम की तरह काम करता था। उनके पास एक स्ट्रेटेजी थी, वो अपने बेस्ट बैट्समैन को 5 डाउन भेज सकते थे। इंडिया की टीम में मैंने सेंचुरी बनानी है, ये वाला मेंटेलिटी था। कुछ वैसा ही मामला आज बीजेपी और विपक्ष में है। विपक्ष के पास पॉपुलर लोग हैं, विपक्ष के पास दिमाग भी है,
लेकिन वो जो एक रणनीति होनी चाहिए चुनाव लड़ने की, वो विपक्ष के पास नहीं है। बीजेपी हर चुनाव रणनीति से लड़ती है, हर चुनाव में पूरी ताकत लगा के लड़ती है। या दूसरा उदाहरण जो मैं देता हूँ वो ये कि आप और मेरे ज़माने में जब हम परीक्षा दिया करते थे, माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा कैसे देते थे कि टेक्स्ट बुक पढ़ लिया, स्कूल के नोट्स पढ़ लिए, एग्ज़ाम देने चले गए। आजकल बच्चे कैसे देते हैं? कोटा जाते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, उसकी 200 बार अटेम्प्ट करेंगे, प्री टेस्ट होगा, ट्रायल होगा, ये होगा। बीजेपी ने इलेक्शन लड़ने को ऐसा ही बना दिया है। तो अब आप पुराने तरीके से, आज आप और मैं पुराने तरीके से एग्जाम देने जाएंगे, फेल हो जाएंगे, हमारा नंबर कहीं नहीं आएगा, जेई में, नीट में, कहीं हम नहीं आएंगे। बीजेपी ने इलेक्शन को वैसा बना दिया है। एक तो वो चीज है, उसके बिना अब बीजेपी का मुकाबला करना संभव नहीं। दूसरा, बीजेपी के पास एक नैरेटिव है, एक सपना है। वो झूठा है सपना, लेकिन सपना तो है। मोदी सपनों का सौदागर है, झूठे सपनों का सौदागर है, लेकिन सपने हैं, पॉजिटिव मैसेज है। देश आगे बढ़ रहा है, हम ये करेंगे, माँ भारती ने ये किया है, अब ये हो गया है, देश की प्रतिष्ठा ये हो गई है। विपक्ष के पास मेनली नेगेटिव मैसेज है, मोदी ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। बट व्हाट इज द पॉजिटिव मैसेज? आप क्या करेंगे? देश के सामने क्या एक बड़ा तस्वीर, एक बड़ा ऑल्टरनेटिव, एक बड़ा प्लान, एक योजना, वो क्या है? मुझे आज भी नहीं पता। जो परिवार, एक 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 कनकड़ी परिवार से। जो जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने, ये तेजस्वी ने इस बार बोला, हर परिवार को सरकारी नौकरी बोला उन्होंने। इसमें दो चीजें हैं। पहला तो कि ये घोषणा चुनाव से 15 दिन पहले हुई, जमीन पे पहुंची नहीं। दूसरा, जब चाय की दुकान पे या पान की गुमटी पे इस पे चर्चा होती थी, लोग कहते थे ये थोड़ा ही हो सकता है ना। प्रॉमिस ऐसा होना चाहिए जो क्रेडिबल हो, जिसमें लोगों को भरोसा हो सके, ये है पैसा ना। कहाँ से आएगा कहाँ से? ये? देखिए, 2 करोड़ नौकरी सिर्फ बिहार में, 2.5 करोड़ नौकरी, पूरे देश में सरकारी नौकरी इतनी नहीं है, केवल बिहार में कैसे आप 2.5 करोड़ नौकरी दे देंगे? लोग सोचते हैं ना इन बातों को। दूसरा और तीसरा कुलेंदा, ये जो सबसे गहरी चीज है, विचारधारा। हम सोचते हैं कि हमारे पास विचारधारा है, बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं। बीजेपी ने एक विचारधारा को इस देश में स्थापित किया है। बीजेपी ने इस देश की 3 सबसे जो मूल्यवान संपत्ति है राजनीति की, वो अपनी प्लेट में रख ली है। या मैं यूं कहूं कि हमने उठा के उनकी थाली के अंदर रख दी है चीज। वो 3 क्या है? राष्ट्रवाद, हमारी सभ्यता और संस्कृति में गौरव, और हमारी धार्मिक परंपरा। इन तीनों को हमने उठा के बीजेपी की थाली में रखा है, इसलिए कि राष्ट्रवाद से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। इस देश की आज़ादी के लिए बीजेपी ने एक व्यक्ति की कुर्बानी नहीं दी। उनका कोई लीडर, ये जो आरएसएस का, इनके बीजेपी के जो भी पुराने लोग थे जिनको वो अपना गुरु मानते हैं, एक व्यक्ति जेल नहीं गया। सावरकर जेल जाने के बाद इनके विचार में बने, पहले नहीं गए। जेल नहीं गया, किसी ने अपना एक बूंद खून का नहीं दिया। वो लोग आज राष्ट्रवाद के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। इस देश की सभ्यता और संस्कृति, दरअसल बीजेपी आरएसएस को उससे कोई गहरी निष्ठा नहीं है। मैं सीरियसली कहता हूँ, गंभीरता से कहता हूँ। प्रधानमंत्री मैकॉले पुत्र कहते हैं, सबसे बड़े मैकॉले पुत्र ये आरएसएस वाले हैं, क्योंकि ये भारत को यूरोप के सपने में ढालना चाहते हैं। क्योंकि ये भारत की संस्कृति को, यहाँ तक कि हिंदू धर्म को, ये हिंदू धर्म को बेसिकली एक एब्राहमिक रिलीजन्स जो है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उसके ढांचे में ढालना चाहते हैं। तो ये तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से मरे हुए लोग हैं, तो संस्कृति में नहीं है। और हिंदू धर्म की इन्हें समझ नहीं है। इन्हें हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। जैसे जिन्ना को इस्लाम से कोई वास्ता नहीं था, सावरकर को हिंदू धर्म से वास्ता नहीं था। सावरकर कोई पूजा पाठ के विरुद्ध है, सावरकर गौ हत्या के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है, गौ से उनको कोई प्यार नहीं है। तो इनको कोई हिंदू धर्म से लेना देना नहीं है। हिंदुओं का नाम लेके राजनीति की दुकान चलाने से मतलब है इनको। तो लेकिन ये जो 3 चीज हैं, हमने धीरे धीरे उनकी प्लेट में रखनी शुरू कर दी। इन तीनों को दोबारा हासिल करना पड़ेगा, ये किए बिना हम नहीं करेंगे। तो सवाल केवल चुनाव जीतने का नहीं है, सवाल केवल रणनीति का नहीं है, सवाल केवल विपक्षी एकता का नहीं है। उससे गहरा सवाल है देश के सामने विकल्प और सपना, और उसका गहरा सवाल है उससे जुड़ा हुआ एक विचारधारा
और उससे जुड़ा हुआ एक सामाजिक आधार, सोशल बेस। इस देश में बीजेपी का विरोध करने का सबसे बड़ा सामाजिक आधार है इस देश का निम्न वर्ग जो है, गरीब भी, जाति के हिसाब से भी, धर्म के हिसाब से भी और वर्ग के हिसाब से भी, तीनों। जाति के हिसाब से इस देश का जो बहुजन वर्ग है, शूद्र अतिशूद्र है, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जो है वो। धर्म के हिसाब से जो अल्पसंख्यक वर्ग समाज है, और वर्ग के हिसाब से जो गरीब है, जो कि अपर कास्ट में भी है, सब तरफ है। इनका संगठन करना, इसका एक हिस्टोरिक ब्लॉक बनाना विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और मैं समझता हूँ विपक्ष इस बड़े काम को नहीं कर पा रहा है, और जो छोटी छोटी चीजें हम देखते हैं वो इस बड़े फेलियर का परिणाम है, वो मुख्य कारण नहीं। आपने बोला ना जो फेलियर, ये हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए पहले तो एक यूनिटी का जरूरत है, एक मंच का जरूरत है, वहां से तो शुरू करना पड़ेगा ना। আমি বলছি দাদা, এটা দরকার আছে, ये अनिवार्य है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ। इंडिया ब्लॉक बन गया, अब उनका मीटिंग लास्ट टाइम कब हुआ था मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। मीटिंग में कॉमन रेजोल्यूशन क्या पास होता है पता नहीं, इंडिया ब्लॉक का क्या पोजीशन है देश के बड़े सवालों पे मुझे पता नहीं। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कोई व्यक्ति उठ के कहेगा नहीं मोदी को वोट नहीं देगा, मैं इनको, इनमें है कौन, पता तो लगना चाहिए। तो बिल्कुल एक यूनिटी का प्रश्न अनिवार्य प्रश्न है, वो पहला स्टेप है, लेकिन उस स्टेप से काम नहीं बनेगा, आपको कई और स्टेप उसके बाद लेने होंगे। আমাদের কাছে এখন একটু সময় আছে। হুম। আমরা যদি এই এই ইন্ডিয়া জোটকে পুনর্গঠনের জন্য আমরা দেখেছি যে রাজনৈতিক দলগুলো তারা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে চলে, তারা তাদের সেই স্বার্থের বাইরে বেরিয়ে এসে করা খুব মানে আপাতত আমরা কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। তাদের নিজেদের কন্ট্রাডিকশন এত বেশি। এইরকম সময় কিন্তু এই ইউনিটিটা জরুরি। কারণ নাগরিক সমাজের আন্দোলন গিয়ে নিজেরা লড়তে পারবে না এবং লড়ে মানুষকে সেই ভরসাও দিতে পারবে না। কিন্তু আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে নাগরিক সমাজের তরফে একটা কনসিস্টেন্ট একটা প্রেশার এই পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর উপর রাখা, হ্যাঁ? যে তোমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই কর্মসূচি নিতে হবে। এরকম একটা সাংগঠনিক ধাঁচা তোমাদের বানাতে হবে। সেখানে যাতে নাকি কোনো কন্ট্রাডিকশন না হয়। হ্যাঁ, এগুলো আমাদেরই খানিকটা হেল্প করে করতে হবে, তাদেরকে রাজি করাতে হবে। সুতরাং এই কাজটা কিন্তু নাগরিক সমাজের একটা খুব বড় দায়িত্ব। এটা কি আমরা করতে পারবো? এবং আমি মনে করি এই ব্যাপারে সমস্ত ভারতবর্ষের সমস্ত বিশিষ্ট নাগরিকদের আমরা ভারত জোড়ো অভিযানের মঞ্চে যদি সবাইকে জড়ো করতে পারি এবং এটা যদি শুরু করতে পারি, আমার মনে হয় এটা একটা সদর্থক আ রাস্তা দিতে পারে। आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा दायित्व है। ये दायित्व सिर्फ हमारे करने से नहीं पूरा होगा, सामने वाले को भी उसका रेस्पेक्ट करना होगा। और आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, बड़ी पार्टी के, उनको लगता है चुनाव जीतना लड़ना हमें आता है, ये लोग कौन है हमें सुझाव देने आए हैं। तो वो एक सीमा है जिसके भीतर आपको काम करना है। लेकिन ये बात सही है कि इसके लिए दबाव बनाना सिर्फ एकता के लिए नहीं, साथ में कार्यसूची হুম। करना क्या है, एजेंडा तो हो ना कुछ करने का। क्योंकि केवल विपक्षी दल के नेता साथ खड़े हो गए, हाथ उठा दिया, उससे लोगों को विश्वास नहीं। नहीं, उन्हें बहुत देख बताना लिया। होगा कि क्या करेंगे आप, और वो विश्वसनीय होना चाहिए, हुँ, क्रेडिबल होना चाहिए। हुँ। ऐसा मत कहिए कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे, ये होगा नहीं। क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव देश में खड़ा करना, हुँ। ये बेहद जरूरी है। उसमें हमारे आप जैसे लोगों को भी एक योगदान करना है, और तमाम लोग, नागरिक, सब लोगों के मन में इस वक्त यही है कि विपक्ष थोड़ा बेहतर काम क्यों नहीं कर पा रहा। बीजेपी को वोट देने वाले लोग भी चाहते हैं कि इस देश में विपक्ष मजबूत हो, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो सचमुच विपक्ष के लिए अपने गिरेबान में झांकने का वक्त है कि अपनी रणनीति को, अपनी सोच को दोबारा ध्यान से देखें। আমার এটাই অনুরোধ যে আপনি এই ব্যাপারে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন যাতে নিশ্চয়ই করব, নিশ্চয়ই। নাগরিক সমাজকে যাতে ঐক্যবদ্ধ করে আমরা একটা কর্মসূচি এবং কিছু সাংগঠনিক একটা ধাঁচা যদি অন্তত একটা তৈরি করে, সেটা আমরা ডিকটেট করতে পারবো না। কিন্তু আমরা যদি তৈরি করে তাদের সামনে রাখি যে তোমরা প্লিজ এইরকম ভাবে অন্তত শুরু করো। হ্যাঁ? তাহলে মনে হয় আমরা একটা পথ খুঁজে পাবো বিকল্প পথ। निश्चय, निश्चय।